Hello everyone, welcome to Bhuvigyan modules. My name is Swayambhu Tripathi और today we are going to discuss the second module, that is crystal lattice from crystallography, which is our ongoing topic right now. Paleontology is also running parallelly along with the crystallography, and other modules are also available, so you can check those out too. So let's begin with the first question. So in the first question it is written as the aluminium crystallized in face-centered cubic closed structure. So it is what a face-centered cubic closed structure means, FCC. So in case of FCC, your formula for radius of an ion is equal to A upon 2 root 2. So here radius is given to us, which is equal to 125 pm. This is what, per million, right? So you can convert it to meter. R will be equal to, pm means per million, so 125 into 10 to the power minus 6 meters. So if needed, convert, or if you don't convert then also there will be no issue. So put the value of R here as 125, because we have to calculate in pm, so we don't have any need to convert it into meter. So 125 is equal to A upon 2 root 2. So you will get the value of A from here. A की value यहाँ से you will get. So this is what asked in the question, the edge length of a unit cell. Okay, this is clear. So it will, after calculation, it will come out to be 353.5. So this is what, 353.5. So ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ये एक्सप्लेन किया था मैंने. So this is what your formula to calculate the radius when the your edge length is given. So this question is done. Let's move to the next question. So the next question is, the radius of beryllium 2 plus cation is 59 pm and that of S2 is 120 pm. The structure of BES is, तो इसमें हमको BES का स्ट्रक्चर बताना है. और मतलब स्ट्रक्चर मतलब क्या है, ये हेक्सागोनल है, ट्राइगोनल है, टेट्रागोनल है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस का रेशियो निकालना पड़ेगा. सो रेडियस का रेशियो का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है आपका रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन माइनस रेडियस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन. तो इसमें कैटायन कौन सा है आपका, 59 आपका कैटायन हो गया और 170 एनायन हो गया. तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो रेडियस रेशियो निकल के आ जाएगा हमारा RC. रेडियस रेशियो हमारा निकल के आ गया 59 डिवाइडेड बाय 170. इसको आप कैलकुलेट कर लेना, कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी. उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम टेबल में देख के वी कैन टेल व्हाट दिस इज. सो लेट मी कैलकुलेट दिस. सो आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ your division of radius of cation divided by radius of ion, you will get the value as 0.347. ठीक है, ये हमारा रेडियस रेशियो की वैल्यू आ गई. दिस इज व्हाट योर RC. तो रेडियस रेशियो जो 3.417 है, दिस इज व्हाट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपका 4. ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या है, आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, वो है आपका टेट्राहेड्रल. ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इज कम्स अंडर योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल. सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So solution is also given here. When you divide this, it will come out to be 0.347 and this is what your tetrahedral structure. So let's move to the next question.
The radius of a cation is 96 pm and that of anion is 618 pm. Determine the coordination number and the structure of a lattice. So सेम प्रीवियसली जो क्वेश्चन था उसी के जैसा ही है. दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट द रेडियस रेशियो एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द रेडियस रेशियो, बट इन दैट टेबल यू हैव टू लर्न ना फॉर विच रेडियस रेशियो व्हाट इज द स्ट्रक्चर. So when you divide here, cation is 96 pm and anion is 618. So divide these two, you will get the value of radius ratio, and from that you can know the structure. So let's do this one. So what you will do first, this radius of cation is given here, radius of anion is given here. Calculate radius ratio, which is equal to 96 by 618. Let me calculate what it comes to be. So what I did is 96 divided by 618, it comes out to be 0.15. So 0.15, this value comes under your which structure? Trigonal structure. Trigonal structure के अंदर आता है ये. So 0.15 वैल्यू आ गई हमारी. 96 डिवाइड बाय 618, ये क्या है आपका रेडियस रेशियो है. रेडियस रेशियो वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं. रेडियस रेशियो इज गिवन बाय रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन. दिस इज क्लियर. सो दिस विल बी योर ट्रायगोनल स्ट्रक्चर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन हैव गिवन. फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट. First you have to calculate the radius ratio, then radius ratio comes out to be 0.1553 and this range comes under your trigonal planar structure. Let's move to the next question. A sodium metal crystallized in body centered cubic lattice with edge is equal to 4.29 Armstrong. What is the radius of a sodium atom? तो इसमें सोडियम एटम का रेडियस निकालना है हमको. एच की वैल्यू दी हुई है. एच मतलब ए इज इक्वल टू 4.29 आर्मस्ट्रॉन्ग ये दिया. बॉडी सेंटर्ड में आपका रेडियस निकालने का फॉर्मूला जो होता है विच इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू √3 ए बाय 4. दिस इज क्लियर. सो बॉडी सेंटर्ड में ये फॉर्मूला हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके वी कैन कैलकुलेट इट. ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं इसको. सो आफ्टर कैलकुलेशन इट कम्स आउट टू बी 1.86 आर्मस्ट्रॉन्ग. सो ध्यान रखना आपको कि फेस सेंटर्ड में जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है r इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2 और बॉडी सेंटर्ड के केस में जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ आयन इज इक्वल टू √3 a by 4. ठीक है. एंड इस पे गेट पे काफ़ी बार गेट और जैम पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं यहाँ से बेसिक केमिस्ट्री से. सो कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस वन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो बहुत क्विकली मूव कर लेंगे इसमें. द कोऑर्डिनेशन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ MgS ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस रेशियो. सो हमको यहाँ पे कैटायन का रेडियस रेशियो गिवन है Mg2+ का और एनायन का भी गिवन है 184. दोनों को डिवाइड कर देंगे. तो व्हेन यू डिवाइड बोथ ऑफ देम यू विल गेट द वैल्यू है 0.35 और जो 0.35 है आपका ये किस में आता है. इस 0.35 में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आपका 4. ठीक है. और 4 में आपको स्ट्रक्चर पूछेगा तो स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल. So this is clear. So 4 is the answer. So you can see how the modules are basically designed ताकि you remember the formula and you get to know how different type of questions can come from the particular topic. And if you practice from here, exam में आपको कोई भी question जो है वो new नहीं लगेगा इसकी वजह से, है ना. So you can easily tackle the problems. अभी क्या है यहाँ से धीरे धीरे the complexity of the problem will increase from here. So in starting the basic questions are there. Now let's move to the little bit advanced problems. So here the solution is given here. So value you got as 0.3533 which comes under your coordination number of 4 and the structure of MgS here is tetrahedron.
So the next question is the chloride ion has a radius of 0.18 mm. The radius of smallest cation which can be coordinated with the neighboring chloride ion will be. So ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको टेबल जो है वो मेमोराइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर इसमें क्या है कि हमको कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 8 दिया हुआ है, उसमें जो आपका इसमें वी हैव टू फाइंड द व्हाट स्मॉलेस्ट कैटायन की वैल्यू क्या हो सकती है ना, क्वेश्चन में है यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट कैटायन का रेडियस। तो हमको पता है कि रेडियस रेशो आरसी का जो फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू कैटायन का रेडियस अपॉन एनायन का रेडियस। अब रेडियस रेशो जो है उसमें अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसकी जो वैल्यू 8 कहाँ पे होती है, वो होती है आपकी 0 पॉइंट मिनिमम वैल्यू आई एम टॉकिंग व्हाट इट इज 0.732। हमको रेडियस ऑफ कैटायन फाइंड आउट करना है, तो दैट विल बी सी ओनली डिवाइडेड बाय 0.181 नैनोमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमारे वैल्यू आ जाएंगी, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.132 नैनोमीटर। और हमको पूछा किसमें, इट इज आज इन आर्मस्ट्रॉन्ग, सो दिस विल कम आउट टू बी सी इज इक्वल टू 1.32 आर्मस्ट्रॉन्ग। So you can see how this your table is how much really helpful to you। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, और आप लास्ट 2-3 इयर्स का पेपर वगैरह भी आप देखेंगे तो यू कैन सी कि इस टाइप के प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यूसली गेट में आ रहे हैं। सो आई विल रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 8 जो कोऑर्डिनेशन नंबर उसकी वैल्यू याद रखें विच इज इक्वल टू 0.732, ठीक है। और लास्ट में जो नैनोमीटर था उसका यूनिट कन्वर्जन भी यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question came in GATE, so we'll discuss this problem as well. So let's discuss this problem। यहाँ पे हमको गिवन क्या है कि a fluoride crystal has a face centered cubic structure। FCC पे वैल्यू दी हुई है, तो जैसे आप FCC या BCC कुछ भी देखें, सबसे पहले you write the formula for it। So FCC का फॉर्मूला हमारा होता है which is equal to A upon 2√2, ठीक है। अब यहाँ पे A की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे A की वैल्यू गिवन है 5.463। A की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ A हियर, ठीक है। अब हमको यहाँ पे आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड दिया हुआ है, आयनिक रेडियस ऑफ हमको कैटायन फाइंड आउट करना है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, आपका रेडियस, ये रेडियस कंबाइंड रेडियस होता है दो आयन्स के बीच में। मतलब जैसे आपका ये एक आयन है और ये जो आयन है, इनके जो बीच का जो रेडियस है, लेट मी चेंज द कलर फॉर दिस वन। सो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज योर दिस वैल्यू। तो यहाँ से जो वो डिस्टेंस जो रेडियस निकल के आ रहा है, सो यू कैन राइट हियर एज रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू योर, जो भी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ना, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर देना, और इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दिस वैल्यू इज गिवन टू यू, किसकी, कैटायन की वैल्यू गिवन है, इसको यहाँ पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो कैलकुलेट सब करने के बाद यू विल गेट एज वैल्यू एज 2.15 is the answer। So let's move to the next question। Here solution is also given। So this question is one of the very easy question। You have to calculate what, the electrostatic valency। So electrostatic valency का direct formula होता है electrostatic valency, this one, electrostatic valency is given by,
योर चार्ज ऑफ आयन, ठीक है, चार्ज ऑफ आयन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंस इक्वल टू चार्ज ऑफ आयन डिवाइडेड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। सो NaCl में चार्ज ऑफ आयन हमारा जो NaCl में चार्ज ऑफ आयन की वैल्यू 1 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू दी हुई है 6, तो डिवाइड बाय 6। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन 1/6। So let's move to the next question. The radii of A2 plus charge and B negative charge are this and this, the coordination number. Again same kind of problem, calculate the radius ratio. Radius ratio की वैल्यू चेक करना आपकी कहाँ पे लाई कर रही है, और जहाँ पे भी रेडियस रेशियो की वैल्यू लाई करेगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर मार्क कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन आप करके देख लेना एक बार। तो इसका कैलकुलेशन व्हेन यू विल डू इट विल कम आउट टू बी 0.85, ठीक है, 0.85 वैल्यू आएगी, 0.85। और 0.85 आपका कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर पे लाई करता है, ये आपका लाई करेगा क्यूबिक पे, ठीक है, 0.85 लाइज इन योर व्हाट क्यूबिक। सो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8। So let's move to the next question. Okay, this is clear. Radius ratio से आप निकाल लेना, फिर वहाँ पे you can put the value. So this is the last question of our module. So this is one of the toughest question. So ये मैं अपने viewers पे छोड़ता हूँ कि आप इसको solve करके बता देना मुझे। मैं formula आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि general formula क्या होता है। The Al crystallizes in FCC, ठीक है, FCC पे क्रिस्टलाइज हो रहा है Al, तो जो डेंसिटी है आपकी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, उसको निकालने का आपका जो नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है M इंटू Z डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय A टू दी A का क्यूब, ठीक है। M इसमें आपका M मोलर मास हो गया, M विल बी योर मोलर मास, ठीक है। Z की वैल्यू FCC के केस में आपकी होती है 2, ठीक है, और Na एवोगैड्रो नंबर हो गया, A क्यूब आपकी एज लेंथ हो गई, और डेंसिटी यहाँ पे गिवन है। सो कैलकुलेट इट एंड मुझे बताना कि आंसर कितना होगा। ओके, कैलकुलेट एंड देन टेल मी हाउ मच वैल्यू गॉट। सो आई थिंक दिस मॉड्यूल इज रियली हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट। ये इसका फर्स्ट पार्ट था लैटिस का, एक और मॉड्यूल में लैटिस पे अपलोड करूंगा, एंड टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी, एक टॉपिक छूटा हुआ है टेस्ट सीरीज पे, वो भी आई विल अपलोड इन द टेस्ट सीरीज सेक्शन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।